Well, good evening to all of you. I'm sorry for being delayed. How are you all? Am I audible to you? Please mention yes if I am audible. Welcome, Abdul. How can I help you? Hello, sir. How are you? Hi, I'm doing well. What about you? I'm fine. Perfect. Okay. How can I help you? I posted my question on your stories. Okay. I didn't get it. Can you come again, please, if you don't mind? Please अभी mention your question. हो गया वो। मार्केट गया हुआ था यार, मैं कल बात करता हूँ यार। My question. I forget my question. We wait. My question was, I think it was oh, difference, some kind of difference. I was asking about. You can Uh, come again whenever you can recall your question. All right. Thank you okay. very much. All right, guys, please mention if I'm audible to you because I don't have mic today, and I think that uh, my voice might get lower as compared to the previous one. So, बिल्कुल आवाज clear आ रही है? Start asking your question one by one. Actually, it's 6 o'clock. I'll be live for next half an hour only because I got late today and due to some lot of work. जो मैं संडे को ही करता हूँ especially. So you may ask your questions. By the way, the topic of today's live, it is already mentioned there. Sunday is not fun day. It is a day of realization. So what do you mean by realization? Realization because basically, people, what they think that Sunday aa gaya, so we should, take leave, we should enjoy, we should, do whatever I want to do, because it's a fun day. But for successful people and for responsible people, it is not fun day. It is a more hectic day as compared to the previous days. Why? Because they think that it is the day where I should realize, where I should sit alone and realize that what I want. Well, yes. So I'm audible. So I was talking about that Sunday. I was talking about Sunday. So most of the people basically, as I told you, that they think that Sunday एक fun day है जो हमारी life में दो तीन बार आना चाहिए. And I told you the same that Sunday fun day है, definitely है. But उनके लिए जिनकी life में responsibility नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, या फिर जिनकी life में कोई dream नहीं है, वो अक्सर ऐसे दिन को जो प्रीसियस डे होता है इसको फन डे में कन्वर्ट करते हैं. तो फन डे नहीं है ये संडे जो है सबसे बड़ा जिम्मेदारी का दिन होता है जहां पे एक इंसान पूरे वीक में क्या किया उसने, एक बिजनेसमैन पूरे वीक में कितना कमाया उसका रियलाइजेशन करता है, एक माँ पूरे वीक में अपने बच्चों की कैसे केयर करती है उसका रियलाइजेशन करता है, एक टीचर पूरे वीक में अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया और कितना बेटर तरीके से पढ़ा सकता है इसका रियलाइजेशन करता है. और इसी के साथ साथ जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इस धरती पे वो सब पूरे वीक में जितनी भी मेहनत करते हैं मंडे टू सैटरडे, वो अंत में संडे वाले दिन बैठकर रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं. So they made a plan basically, they make a plan to hit in upcoming week. तो बेसिकली आज का जो दिन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है और बहुत ही ज्यादा प्रीशियस डे होता है. अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे वीक में सबसे इम्पोर्टेंट डेज कौन होता है तो मैं कहूंगा हॉलीडे का डे. वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको खेलने कूदने गाने फिरने आने घूमने इनके लिए मौका मिल जाता है, वो इसलिए कि यहाँ पे आप अपने आप को वक्त दे सके, आप अपने बारे में अपने भविष्य के बारे में सोच सकें
इसके लिए ये दिन होता है। और आज के दिन अक्सर कामयाब लोग जो हैं बैठकर प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और किस तरीके से वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। एंड मंडे होते ही उस प्लान को वो हिट करते हैं और फिर सैटरडे तक वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि जो नेक्स्ट संडे आने वाला होता है वो उस दिन रियलाइज करते हैं, यस आई डिड इट। I had a plan to do 100%, but I did it more than 100%. Even I hit 300%, 400%. And उनको दिखता भी है वो प्रोग्रेस जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया था। तो once again I'm telling you कि Sunday is not a fun day. It's a realization day where you realize about your previous tasks that you have done. Whether you did it in a good manner or you did it just for, your responsibility, just to, finish your responsibility. जिम्मेदारी समझ के आपने सिर्फ किया था या सच में आपने मेहनत से अपने हर दिन को स्ट्रगल में डालकर मेहनत किया था। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड कि आप हर दिन को किस तरीके से लेते हैं। तो संडे अगेन आई एम टेलिंग यू इज नॉट अ फन डे। आज के दिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स दैट जब भी आपकी लाइफ में संडे होता है तो उस दिन आप रियलाइज करें कि भगवान ने क्या ये संडे सच में इसलिए आपको दिया है। इनफैक्ट भगवान ने तो नहीं दिया, ह्यूमन मेड है ये, ह्यूमन काइंड ने इसे बनाया है संडे को एक फ्री डे। तो संडे का फ्री डे जो होता है, अक्सर आप देखिए अमीर लोगों की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे, बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो पूरे वीक में जितनी मेहनत करते थे उससे ज्यादा वो इस वीकेंड पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आजाद होते हैं अपनी डिसीजन और अपने आइडियाज को एक्शन में लाने के लिए अपने अकॉर्डिंग, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज का दिन जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है और हमें आज के दिन जो है सब डबल, इवन 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली भविष्य को सुधार सकें। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए कि आपको मंडे को आपने जॉब पे गए, बिजनेस में गए या फिर अपने रिश्तेदारों में गए, कहीं भी गए, आपने मंडे को गए, मंडे से सैटरडे आपको काम करना होता है। मंडे से सैटरडे चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं, आप मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे आप काम करते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं बहुत थक गई या थक गया, अब मुझे संडे मिला है, नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय। और अगर आप जैसे ही आप सोचते हैं इट्स टाइम टू एंजॉय, सो यू आर लूजिंग समथिंग and you're really losing a precious day which is Sunday. So आप संडे को मिस कर देते हैं because जब आपको रियलाइज करना चाहिए, जब आपको आपकी आगे की ग्रोथ को सोचना चाहिए, जब आपको आगे के बारे में और बेटर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य को और कितना डेवलप कर सकते हैं और कितनी ज्यादा नॉलेज गैप कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, देश के लिए, खुद के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, ये सब ना सोच के आपने अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली एक ब्रेन में एक र्यूमर बनाया। वो र्यूमर ये था कि मैंने मंडे टू सैटरडे बहुत काम किया है और अब मुझे एंजॉय करना चाहिए और फन करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी कहावतें हैं, ये सारी बकवास है कि मंडे टू सैटरडे आप काम करके थक जाते हैं और आपको एंजॉय करना चाहिए संडे। ट्रस्ट मी, एक इंसान अपनी लाइफ में अगर वो अच्छी हेल्दी फूड लेता है और एजुकेशन लेता है तो वो अपनी लाइफ में 12 से 14 घंटे भी काम कर ले, फिर भी उसे रियलाइज होगा कि उसे थकान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेशन के साथ करता है जिम्मेदारियों को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर जब आप जिम्मेदारी को प्यार से और डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल और एक सपना लेकर आंखों में करते हैं ना, तो कब घंटे निकल जाते हैं, कब दिन निकल जाता है, कब सप्ताह निकल जाता है, कब महीने हो जाते हैं, कब साल होता है, कुछ पता नहीं चलता है। सब आपको बस इतना पता होता है कि मुझे मेहनत करना है और आप मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और आपकी मेहनत को देखकर आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमती है और आप कामयाब हो जाते हैं। सो दिस इज द सिंपल फिलॉसफी। तो ये सब एक कहना, देखिए एक इंसान की लाइफ में थोड़ा सा गैप होना चाहिए अम्यूजमेंट के लिए, राइट? वो होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा दिन ही आपने निकाल दिया ये सोच के कि संडे मुझे मिला है, आज का दिन फंडे है और आज फन करते हैं, मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। करिए, बिंदास कीजिए, लेकिन मुझे इन द एंड ऑफ द डे आप बताइए क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा। आपको जब सीखना चाहिए था, आपको जब रियलाइज करना चाहिए था, आपको जब अपने भविष्य के बारे में एक अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान बनाना चाहिए था या अपनी कामयाबी को एक कैसे फ्लो में कंसिस्टेंटली लेकर जाना है,
इसके बारे में सोचना था, उस समय आपने कुछ नहीं किया और आपने क्या किया, बस एंजॉय किया, फन किया, और उस फन के चक्कर में आपका वो दिन चला गया। अगेन मंडे आएगा और मंडे टू सैटरडे अगेन आपका माइंड कंसिस्टेंटली बिजी हो जाएगा उन सारी जिम्मेदारियों को करने में जो या तो आप निजी तौर पे कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं खुद के लिए। तो इस जिम्मेदारियों को करने में जब आपका दिमाग 24 घंटे व्यस्त रहता है तो आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, this is just to inform you that Sunday is not a fun day. It's really a big day where you can realize yourself that what do you want and what did you do in last couple of days. So आज के दिन आज आप बैठकर आप रियलाइज कीजिए कि पूरा एक सप्ताह मेरे आंखों के सामने से निकल गया, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मेरा भविष्य बन जाए, जिससे कि मैं अच्छी कामयाबी को पा सकूं, जिससे कि मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जो लोगों के दिलों पे राज करे, या जिससे कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं आपने किया। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने बस अपनी ड्यूटी निभाई है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपने बस पैसा कमाने के लिए अपनी काम को किया है जिससे कि आपको पैसा मिला है या जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हुआ है। दैट्स इट। लेकिन ये बिजनेस, ये जॉब में आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आप इन बिजनेस आवर्स से या वर्किंग आवर्स से थोड़ा सा साइड होकर प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट एरिया में आप जाकर आराम से सोचते हैं प्राइवेट पार्ट ऑफ योर लाइफ के बारे में। प्राइवेट पार्ट ऑफ योर लाइफ का मतलब होता है बेसिकली कि जो आपके पास है वो क्या है, जो आपने छुपा रखा है अपने अंदर, और इसको कैसे निखार सकते हैं हम, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त आज का दिन होता है। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको दूसरों के सपने को पूरे करने के लिए मंडे टू सैटरडे काम करना होता है, क्योंकि उससे आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मंडे टू सैटरडे आपको काम करना होता है, क्योंकि उससे आपका घर चलता है। लेकिन खुद पे कब काम करेंगे आप, खुद के बारे में कब सोचेंगे, खुद की कामयाबी, खुद का ग्रोथ, खुद इस धरती पे क्यों आए हैं, इसके बारे में सवाल कौन करेगा और कौन सोचेगा। सो ऑल दिस थिंग कैन बी हैपन ओनली यू गो अहेड एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ ऑन संडे। So let's welcome Sanaya. How to be responsible student. Just focus on studies. Just focus on study and focus on goal. Second question. Sir, मुझे vocabulary learn नहीं होती है, याद करूँ भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? How to be motivated all the time for you. How to become a responsible student. Just focus on studies or focus on goal. Okay, so I have a question. How to become a responsible student. मतलब एक जिम्मेदार विद्यार्थी कैसे बने, ये सवाल है मेरे पास, और इसमें दो ऑप्शन दिया गया है कि मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए या फिर गोल पे फोकस करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बेसिकली देखिए, ये गोल और स्टडी जो है दोनों ही लाइफ का एक पैरल, साथ साथ चलने वाला हैबिट्स है जिसको आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। गोल की वजह से स्टडी डिस्टर्ब ना हो, स्टडी की वजह से गोल डिस्टर्ब ना हो, ऐसा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और ऐसी आपकी लाइफ हैबिट्स होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका गोल है और वो गोल आपका स्टडी से लिंक नहीं करता है, जहां पे आपको लगता है कि पढ़ने से मेरा वक्त ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, मेरा गोल कुछ और है, तो मेरे हिसाब से आपको गोल पे देना चाहिए ज्यादा वक्त और कम वक्त देना चाहिए आपको अपनी स्टडी पे। स्टडी तो हमेशा करना चाहिए, स्टडी तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुक ही तो है, ये किताब ही तो है जो आपको रियल एजुकेशन देती है, जो आपको रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करती है। बाकी आपके आसपास बैठे हुए लोग ये तो बस आपका मजाक उड़ाते हैं, और आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी कामयाबी से वो जलते हैं। ठीक है, तो ये किताब पढ़ना, ये तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल परमानेंट डाल लीजिए कि आपको पढ़ना ही है। मान लीजिए मुझे एक रेसलर बनना है, या मान लीजिए मुझे एक सिंगर बनना है, या डांसर बनना है, जिसका किताब से कुछ लेना देना नहीं है, ये स्किल है, ये कला है जो मुझे सीखनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, स्किल आपके पास कितनी भी हो जाए, एजुकेशन के बिना वो
अधूरी है। तो एजुकेशन होना जरूरी है आपकी लाइफ में, तो एजुकेशन आप साथ में लीजिए। 24 घंटे भगवान ने आपको दिया है, तो माय सजेशन फॉर यू, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी पे फोकस करें या गोल पे, देखिए ऑफ कोर्स आपका गोल जो है वो आपका भविष्य है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो जो भी हो। तो आप गोल पे अगर आप 100% दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 10%, 20% आप स्टडी पे भी दीजिए। किताबें पढ़िए, मोहब्बत कीजिए किताब से, क्योंकि अगर आप मोहब्बत किताब से करेंगे तो ये आपको, अगर आपसे आपके साथ धोखा भी करेगी तो आपको कामयाब बनाकर धोखा करेगी, मतलब आपको कामयाब बना देगी। ठीक है, तो किताब से तो दोस्ती हमेशा करनी है। अगर आप 24 घंटे में 18 घंटा अगर आप अपनी गोल की तरफ दे रहे हैं, तो 1 घंटे आप किताब को भी दीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों को साथ में लेकर चलना ही आपका सही डिसीजन होगा। आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं अगर मैं स्टडी छोड़ दूं तो मैं अपने गोल पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, या फिर मैं गोल को छोड़ दूं तो स्टडी पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप सच में करना चाहते हैं तो आप दोनों पे फोकस साथ में कर सकते हैं। मैं आपको फोकस करने के लिए आपके गोल पे ज्यादा प्रेशर कर रहा हूँ, स्टडी को बस आप पैरेलली साथ में लेकर चले एज ए सपोर्टिंग हैंड। ठीक है, तो आप आधे घंटे 1 घंटे की स्टडी डेली बेसिस पे करें, एंड बाकी के समय में आप अपने गोल पे ध्यान दें। This is the final solution. Next question. Okay, next question is सर मुझे vocabulary learn नहीं होती है, कितना भी याद कर लूं भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए vocabulary जो है, आप इसको अगर लर्न करते हैं तो लर्न करने की एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि डिक्शनरी में दिया गया है जियो गो गो मिस जाना, सी ओ एम ई कम कम मिस आना, एस पी ई ए के स्पीक मिस बोलना, टी ए एन सी डांस डांस मिस नाचना। इस तरीके से दिया तो होता है, लेकिन आपको याद करना है और आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी माइंड में रखना है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको लॉन्ग टर्म तक अपने परमानेंट मेमोरी में डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू योर टेम्पररी मेमोरी। राइट, सो टेम्पररी मेमोरी में आप जब इसे पढ़ते हैं तो वो चला जाता है, बट परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है। परमानेंट मेमोरी में डालने का, जिसे आप कह रहे हैं याद नहीं हो पाता है, तो याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप जितनी भी वोकैबुलरी लर्न करते हैं उस वोकैबुलरी को कंप्लीटली एक कॉपी पर लिखें, और लिखने के बाद मान लीजिए आपने इस पेज पे वो वोकैबुलरी लिख ली, तो दूसरे पेज पे आप कोशिश कीजिए कि वहां पे आप जो है इस वोकैबुलरी को यूज करते हुए एक पैसेज बनाइए। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाइए जिसमें इन सारी वोकैबुलरी को यूज कीजिए आप। सो वोकैबुलरी लर्न करने का सिंपल सा तरीका है दो। पहला, कि आप उस वोकैबुलरी को लर्न करने के बाद आप उसको यूज कीजिए अपनी राइटिंग सेक्शन में। राइट, आप उसको राइटिंग सेक्शन में यूज कीजिए, बार बार यूज कीजिए। एंड वेन एवर यू कम्युनिकेट ड्यूरिंग द डे, जब भी आप दिन के दौरान बातें करते हैं, तो मेक श्योर आप ऐसी बातें कीजिए जो वो वोकैबुलरी आपकी बातों में आ जाए। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला एज पर माई एक्सपीरियंस, एंड दिस इज हाउ आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस वोकैबुलरी, कभी नहीं। Okay, so the simple way to learn vocabulary or idioms or phrases is to learn it, write it, and recall it. Learn it, write it, and recall it. This is the simple formula. Okay, learn, write, and recall. This is how you have to do this circle task, and you will get to know that. I'm sorry, I'm getting a call, I don't know who is there. I'm sorry for that. Okay, right, so just come here question tha, I believe I'm done with this answer, and I could give you the satisfaction by my answer, and I have experienced in my life कि इस तरीके से अगर आप याद करते हैं हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब भी मैं दे चुका हूं। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, so you can please comment in the comment box so that I can answer you. तो वोकैबुलरी याद करने का सिंपल सा तरीका, आप इसे लर्न कीजिए, लर्न करने के बाद राइट कीजिए। आई मीन एक पैराग्राफ बनाइए, उस पैराग्राफ इन द सेंस कोई भी फिक्शनल स्टोरी आप बना लीजिए, नॉन फिक्शनल स्टोरी कोई सा भी, जिसमें उस वोकैबुलरी को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद उसे बार 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 रिराइट कीजिए, एंड देन फिर रिकॉल कीजिए। रिकॉल इन द सेंस जो भी आप बातें करते हैं उन बातों में इस वोकैबुलरी को ऐड इंसर्ट कीजिए एंड कम्युनिकेट कीजिए। इस तरीके से आप डेली बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी परमानेंट मेमोरी में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
So this was a question how to be a responsible student, just focus on a study or focus. ये इसका मैंने जवाब दे दिया है आपको. So I'm done with it. Yes. So since I don't have any question right now, let me just go ahead and guide you that I was talking about Sunday and fun day and all the relationship between Sunday and fun day. So my dear students and friends, those are watching me, I give you a better suggestion that please be sure make sure that you're not going to waste your Sunday, because it's not a fun day, it's really a realization day. It's a realization day where you realize that what you have done and what you are supposed to do in upcoming weekend. Okay, तो इसको हमेशा आप रियलाइज करें एंड संडे को एक प्रीसियस डे की तरह आप इसे यूज करें अपनी लाइफ में, एंड आई एम डैम श्योर कि हर संडे आपका एक ऐसा गुजरेगा जैसे कि वो यादगार पल बन गया हो आपके लिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत कीजिए। आप मंडे टू फ्राइडे सैटरडे अगर मेहनत करते हैं तो संडे को फंडे में मत लीजिए, आप इस दिन भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको शाइन होना है। आपने कभी देखा है सूरज को जो चमकता है या पूरी दुनिया को रोशनी देखता है, आपने कभी देखा है वो संडे या मंडे मनाता हो या छुट्टी का दिन मनाता हो? बिल्कुल नहीं। आपने कभी अमीर आदमी को देखा है या कोई रिचेस्ट पर्सन को आपने देखा है या किसी भी फेमस पर्सनालिटी को आपने देखा है कि वो कहता हो कि आज का दिन आराम का दिन है और आज मैं कुछ नहीं कर रहा, आज मैं पूरे दिन बस मस्ती करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे फेमस लोग कहते हैं, इवन हमारे लेट अब्दुल कलाम जी भी, उन्होंने भी कहा था कि अपनी लाइफ में कभी भी एक भी मोमेंट ऐसा फ्री मत छोड़ो जिस मोमेंट में तुम्हारा आइडिया तुम्हारे माइंड में आए और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दे। सो कीप योर सेल्फ बिजी ऑल द टाइम। अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को बिजी रखो, जितना ज्यादा आप बिजी रखेंगे उतना ज्यादा आइडियाज आपके माइंड में आता रहेगा और आप कामयाब रहेंगे। अगर आप फ्री रखेंगे अपने आप को तो ये डेविल का हाउस बन जाएगा। इसलिए तो कहा गया है एन एम्प्टी माइंड इज अ हाउस ऑफ डेविल। इसलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो डोंट लेट इट गो इन रियल। मेक श्योर दैट कि आप अपने संडे को अच्छे से यूज करें। एंड रही बात फन करने की, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू कैन व्हेनेवर यू फील बोर्ड ना, टेक अ गैप। हाफ एन आवर का ले लीजिए, 1 आवर का ले लीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। लेकिन मेक श्योर दैट पूरा का पूरा दिन 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे यू कैन नॉट वेस्ट इट। इफ यू डू सो यू आर डूइंग अ क्राइम। एंड जो आपका मन है, इनर सोल है, इसके साथ आप क्राइम कर रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसे पनिश कीजिए। आपका कोई हक नहीं है उसे पनिश करने का। राइट? इसे आप पनिश ना करें। मतलब आप अपने लाइफ में अगर आप बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं या उब जाते हैं किसी काम को करते हुए, तो आप बेशक आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का गैप ले लीजिए। उस घंटे में खुल के एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। लेकिन वंस अगेन, वंस यू आर डन विद इट, कम टू द वर्क एंड डू द स्ट्रगल एंड डू द वर्क which is assigned to you. Is that clear? वर्क आपको खुद से असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाब आपको खुद होना है। तो वंस अगेन, संडे इज नॉट अ फन डे, इट्स अ रियलाइजेशन डे। तो रियलाइज करें आपने क्या किया और आगे आप क्या करने वाले हैं। दिस इज हाउ यू कैन improve yourself day by day, and Sunday can be the best day of your life ever and forever. राइट? एंड यू वुड से, जब भी आप कामयाब होंगे, यू वुड से दैट कि हर संडे को जहां पे दुनिया आराम करती है या जहां पर दुनिया फन करती है, वहां पे मैं बैठ कर रियलाइज करता था, वहां पर मैं बैठ के किताबें पढ़ता था, वहां पे मैं बैठ के जहां पे 2 घंटे स्टडी करता था डेली बेसिस, वहां मैं उसमें 4 घंटे करता था। जहां पे मैं 2 घंटे काम किया करता था, वहां पे मैं 4 घंटे काम किया करता था। जहां पे लोग आराम करते हैं, वहां पे मैं कॉफी पी के, चाय पी के पूरी रात जागा होता था और ट्राई करता था। एंड इस तरीके से मैंने अपने संडे को एक मेमोरेबल डे बना लिया और रियलाइजेशन डे बना लिया था। रियलाइजेशन डे ही मेरा मेमोरेबल डे हो गया और आज मैं आपके सामने हूँ। और अब मैं संडे में अगर चाहूं तो आराम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने पिछले संडे को संडे नहीं समझा था, उसने रियलाइजेशन डे समझ के मेहनत की थी और आज मैं कामयाब हूं। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर संडे मेमोरेबल डे। एनी मोर क्वेश्चन गाइस? ओके,
So finally, I think that I don't have more question, and it's time to go out of live because I have already given one and a half, like half hour, and I don't have questions. So uh, मैं बस इसी टॉपिक के लिए यहाँ पर आया था, आपको यही बताने के लिए संडे जो होता है ये फन डे नहीं होता है, ये एक रियलाइजेशन डे होता है जिसको आप मेहनत कर कर जहाँ पर आप मेहनत करके आप अपने डे को कामयाब बना सकते हैं. तो once again I'm giving you next like 5 minutes. Within 5 minutes, if you have any question, you can please comment me down, and I would definitely come up with your best answer. So I have a question. Let's put up how to give an answer in good way. Answer, like what type of answer? Answer means in what manner. आप किस बारे में बात कर रहे हैं? How to give answer in good way. मतलब can you please mention? Can you please explain? आप किस बारे में बातें कर रहे हैं? How to give. आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं? जो नॉर्मल लाइफ में आपसे कोई सवाल करता है तो उसको सही तरीके से कैसे पेश किया जाए या बोला जाए. आप नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में अच्छे तरीके से जवाब देने की बातें कर रहे हैं? प्लीज एलिब्रेट इट. English language. Okay. So there is a question how to give an answer, how to give, let me put it down. There we go. So how to give answer in good way. See, गुड मैनर में आंसर देने से पहले आपको आंसर आना चाहिए, मतलब आंसर देना आना चाहिए, राइट? अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसका जवाब सबसे पहले आपको देना आना चाहिए, और अगर आपको जवाब देना आता है तो आप इंग्लिश में भी अच्छे से जवाब दे पाएंगे. सबसे पहले हिंदी में आपको अच्छे से जवाब देना आना चाहिए. तो जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ. एक तो ये तरीका हुआ. दूसरा हुआ आप ये कह सकते हैं कि मैं इंडिया का जो प्रिंस सिटी है, कैपिटल, वहां रहता हूँ, राइट? एंड तीसरा तरीका है जो आप कह सकते हैं कि मोस्ट क्या बोलूं, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है जिस स्टेट में, उस स्टेट में रहता हूँ. तो आप इस तरीके से जवाब ना दें क्योंकि ये डिमेरिट है, आई मीन बैड हैबिट्स है. आई मीन इन फैक्ट आई कैन से दैट कि सही वे नहीं है बोलने का. तो राइट वे इज दैट कि जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करो तो मेक श्योर दैट कि आप उसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट ऐड करो. मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई आता है ऑन सडनली और आपसे कहता है हेलो हाउ आर यू, तो आप उसको बोलेंगे ओ थैंक यू वेरी मच, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, राइट? सो एक तरीका होता है बोलने का, और वो तरीका ये है कि आप जब भी किसी से बातें करें तो मेक श्योर उसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड कीजिए. कॉम्प्लीमेंट मींस लाइक thank you. You're most welcome for being here. In fact, I'm glad to see you. I'm happy to see you. I'm cozy to answer you. I'm delighted. I'm, so excited. I'm crazy. So all these things, nice, happy, excitement, good, all these things. जब भी आप बातें करें किसी से तो मेक श्योर ये कॉम्प्लीमेंट्स जरूर ऐड करें. और जब आप कॉम्प्लीमेंट्स ऐड करते हैं so somehow you are appreciating the person with whom you are talking, and the person who is talking to you will be so happy to have you in their life, because it's all about appreciation. जब भी आप किसी से बातें करते हैं तो नॉर्मल बातें जैसे कि मुझे करनी है, अगर किसी से, मैं रिक्शा वाले से भी बातें करूं, अगर मान लीजिए मैं रिक्शा वाले से बातें करूंगा तो वो नॉर्मल बातें मुझसे करेगा, और अगर मैं एक बिजनेसमैन से बातें करूंगा तो वो थोड़ा एडवांस बातें करेगा जहाँ पे वो मुझे अप्रिशिएट करेगा मेरी हैबिट्स पे एंड मेरे गुडनेस पे. एंड वहीं पे अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर से बातें करूंगा अगर, तो वो भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे मेरी गुडनेस पे, और जहाँ पे मेरी वीकनेस होगी वहां पे वो मुझे गाइड करेंगे. और वो भी गाइड इस मैनर में करेंगे कि आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं. गाइडेंस भी दो तरीके का होता है. एक होता है डांट कर इंसल्ट करके गाइड करना, और एक होता है प्यार से और रिस्पेक्टफुली गाइड करना.
तो ऑलवेज चूज द पॉजिटिव वे टू टॉक। सो जब भी किसी से बात करें एंड इंग्लिश में भी बातें करें अगर मेक श्योर दैट आपको हिंदी में पहले बातें करना आना चाहिए और आप राइट मैनर में उससे जवाब दें। तो whatever you talk, make sure that you are going to add compliments. Compliments add कीजिए। Compliments जो है आपकी communications को good manner देता है किसी से भी बातें करने का। Is that clear? So compliments is must whenever you talk to someone. So the best way to answer someone or the best way to talk to someone is to add compliments in your talk. Is that clear? Any more question? Any more question? If you have a question, you can ask, please. I'll be live for next 10 minutes only, and then I have a work to do, so I have to go. So you may ask. So once again, I have already explained and mentioned my thoughts and ideas and suggestions about Sunday. है ना? So the topic जो था इसका वो था Sunday is not a fun day, it's a realization day. तो मैंने already mention कर दिया है। जिन लाइक अगर आप लेट आए हैं और आपने नहीं देखा है तो इस रील को शेयर कर दिया जाएगा। इस रील को आप डेफिनेटली वंस अगेन वॉच कर लें और उसमें आपको पता चलेगा कि ये संडे जो है ये रियलाइजेशन के डे कैसे हो सकता है, ये रियलाइजेशन डे कैसे हो सकता है, हाउ। जहाँ पे दुनिया कहती है संडे इज अ फन डे, संडे इज अ हॉलीडे, संडे इज अ वैकेंसी डे, सो यहाँ पे रियलाइजेशन डे कैसे, हाउ। तो इन सब का जवाब आपको इस लाइव में मिलेगा। इस लाइव को शेयर कर दिया जाएगा तो आप वापस से इसे देख लें एंड यू विल गॉट टू नो दैट। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, please don't make Sunday as a fun day, because if you make it a fun day, your life will be fun day. Your life will become a fun day because कामयाब लोग कभी भी आराम नहीं करते अपनी लाइफ में। वो हर दिन मेहनत करते हैं, हर रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि एक शेर जब जंगल में होता है तो उसे शिकार करना ही होता है अगर उसे अपनी भूख मिटानी है। तो इससे मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप जंगल के राजा हैं या जंगल के किंग हैं या जंगल के बादशाह हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप शिकार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप शिकार करेंगे तो आपको खाने के लिए मिलेगा, अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो इवन जंगल के राजा को भी सुबह सुबह निकलकर शिकार करना होता है और उसे अपने शिकार के लिए चलना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत हमेशा करना चाहिए। एक कामयाब इंसान की सिंपल सी ये फिलॉसफी है कि वो अपनी लाइफ में मेहनत हमेशा करते हैं। पैरेलली वो स्टडी भी करते हैं। स्टडी इज ऑल्सो मस्ट। आप पढ़ना कभी ना छोड़े, है ना। पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह करना, या पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता हिंदी इंग्लिश सीखना। पढ़ाई का मतलब है कि आप किताब से लगाव रखें, आप किताब से मोहब्बत रखें, आप किताब से प्यार करते रहें, आप फिर किताब में कुछ भी पढ़ें। ये आप पे डिपेंड करता है, बट किताब से मोहब्बत रखें। जब आप किताब से मोहब्बत रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप गलत रास्ते में नहीं जाएंगे और सही रास्ते का आप चयन कर लेंगे खुद ब खुद। तो किताबों से तो मोहब्बत रखें। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो किताबों से मोहब्बत के साथ साथ आप किताब लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनसे भी मोहब्बत करें। बिकॉज वो राइटर्स जो होते हैं वो एक दो किताब में अपनी पूरी 70 साल की कहानी नहीं लिख सकते, राइट। तो उनकी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनके ब्लॉग्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे वो अपनी बातों को हर दिन मेंशन करते हैं। तो वो जरूर देखें एंड देखें कम, एक्शन ज्यादा लें, राइट। अडॉप्ट ज्यादा करें और रियलाइजेशन के बाद आप यू हैव टू रियलाइज कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, और फिर उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। तो किताब में क्या पढ़ना है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहें तो आप मोटिवेशनल किताबें आप पढ़ सकते हैं एंड आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं जिसमें आपको काफी सारी चीजें मतलब जानने को मिलती है और आपका माइंड शार्प होता है। आप नॉवेल्स पढ़िए। आप नॉवेल्स किसी भी राइटर्स का उठा के आप पढ़ सकते हैं। वो नॉवेल्स जो है आपको एक नेक्स्ट वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है और आप जो है अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट वे एंड इमेजिनेशन एंड विजन से दुनिया को देखते हैं। तो जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो है एक अलग तरीके से सोचने लगता है, एक उसकी अलग विजन होती है चीजों को देखने की जो पॉजिटिव होती है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप एक कॉमन विजन से देखते हैं जो लाखों लोगों की है और करोड़ों लोगों की है। तो इसका लॉस ये होता है कि आपके सामने ही डायमंड होता है और आपको पता नहीं चलता है कि वो डायमंड है और आप एक नॉर्मल सा स्टोन समझ के उसे इग्नोर कर देते हैं।
So this is the major difference between बुक रीडर एंड कॉमन पीपल, राइट। तो किताब आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज आएगा। तो 24 घंटे में आधे एक घंटे तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें और एक अलग विजन से दुनिया को देखने की कोशिश करें जो डेफिनेटली आपको भी कामयाब करेगा और आपके साथ जुड़े हर व्यक्ति को, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी और मैक्सिमम रिलेशंस वगैरह में आपको सक्सेस देगा। So this is the final statement which I would like to give you. So on Sunday especially अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो make sure that कि संडे को एटलीस्ट आप जो है किताब लेकर बैठे और आधा एक घंटा जरूर पढ़ें। ये आपकी इंसानियत है और आपके अंदर अगर इंसानियत है और आपके अंदर अगर जान है, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है और आपके अंदर अगर जुनून है, जील है, डेडिकेशन है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का इस दुनिया में, तो डेफिनेटली आपको मोहब्बत किताब से करनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर बुक। दो जगह पे लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं आज की लाइफ में, या तो लुक्स पे या फिर बुक्स पे। तो लुक्स पे ध्यान ना देके बुक्स पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि बुक्स की जो क्वालिटी आपके पास वापस आउटपुट बन के निकलती है वो अच्छे लुक्स वाले को भी आपकी गुलाम बना देती है। तो लुक्स पे ध्यान ना देके अपने बुक्स पे ध्यान दे, है ना। अक्सर लोग अपने मेकअप के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, 500 रुपए, 1000 दो हजार, 4 हजार रुपए वो यूं जाके पार्लर में दे देते हैं, ये ले भाई मुझे गोरा कर दे, मुझे ब्यूटी कर दे। आई मीन लुक्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लुक्स पे ध्यान ना देके उस 4000 रुपए का जो आप सिर्फ स्मूथिंग करवाते हैं या फिर बालों में या फेस कीट वगैरह आई मीन अप्लाई करवाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर, आपको 4000 रुपए में से अगर आप थोड़ी सी किताबें खरीद लें या फिर कोई प्राइवेट कोर्स होता है जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का हो गया, ये सब जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपको ज्यादा नॉलेज देता है as compared to your beauty, because वहां जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया अपने लुक्स पे वो कुछ पल के बाद खत्म हो जाना है। लेकिन जो आप बुक्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपके अंदर ऐसा बदलाव लाएगा, ऐसा बदलाव लाएगा कि लाखों ब्यूटीफुल लोग आपके गुलाम हो जाएंगे और आप उनके ऊपर खड़े होके उन्हें स्पीच दे रहे होंगे एज ए गुरु, आप उनके गुरु बन जाएंगे। तो लुक्स पे ध्यान ना देके बुक्स पे ज्यादा ध्यान दें। बुक्स पे ध्यान देना जस्ट लाइक कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना, और लुक्स पे ध्यान देना इज जस्ट लाइक दैट लोगों को प्रायोरिटी देना, बिकॉज यू अल्टीमेटली वांट्स अट्रैक्शन। लुक्स पे ध्यान देके आप क्या करेंगे? अट्रैक्शन लेंगे लोगों का। लोगों के अट्रैक्शन से वो टेम्पररी अट्रैक्शन है। परमानेंट अट्रैक्शन तो वो है जब आप किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाएं, कुछ ऐसा बदलाव लाएं जिसे दुनिया देखकर याद करे। तो बुक्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, लुक्स पे नहीं। बुक्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और कामयाबी ज्यादा मिलेगी और अपनी लाइफ में ग्रो ज्यादा करेंगे। So I think that I'm done with today's class and I have to, oh, it's 6:42. I'll be live for next 3 minutes only, guys. If you have any question, you can please ask. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन related to your life, related to your study, related to your journey, related to your goal, related to your mission, जिससे भी रिलेटेड आपका सवाल है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 3 मिनट्स और है, उसके बाद ये लाइव क्लोज कर दिया जाएगा एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। आई एम सॉरी, ऑन नॉट ऑन मंडे, ऑन अपकमिंग संडे। नेक्स्ट संडे में आपसे डेफिनेटली मिलूंगा एंड आई वुड टेल यू दैट जो लाइव सेशन मैं ले रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी पे, कुछ समय बाद मैं यूट्यूब पे भी लूंगा। और वन गुड न्यूज फॉर यू दैट कि आई हैव स्टार्टेड माय मिशन एंड दैट इज हर घर शिक्षा। तो मेरा जो मिशन है हर घर शिक्षा पहुंचाने का, तो वो उस मिशन को मैं कामयाब करने के लिए मैं नॉर्थ दिल्ली मुकुंदपुर जो है वहां पे अपनी खुद की इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी को रन करता हूँ एंड वहां पे काफी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इनफैक्ट उन बच्चों का भी मैं स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है या जो गरीब है, किसी कारण से उनके फैमिली या पेरेंट्स फी पे नहीं कर पा रहे हैं। आई रियली वेलकम यू इन माई अकेडमी दैट इज एला। एला में आपका स्वागत है, आप आइए, आपको बेटर एजुकेशन दिया जाएगा और आपसे फीस भी नहीं लिया जाएगा। तो फ्री एजुकेशन, हर घर शिक्षा, फ्री एजुकेशन टू ईच हाउस होल्ड पहुंचाने का जो मेरा ड्रीम है और मेरा मिशन है हर घर शिक्षा पहुंचाने का, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ऑफलाइन एकेडमी भी रन करता हूँ, ऑनलाइन एकेडमी भी रन करता हूँ। यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करेंगे हर घर शिक्षा बाय एला
अगर आप सर्च करेंगे हर घर शिक्षा बाय एला यूट्यूब पे, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे मैं 30 दिन की फ्री स्पोकन क्लास देता हूँ। और वहाँ पे मैं फ्री स्पोकन क्लास देने के साथ साथ मैं फ्री गाइडेंस भी देता हूँ, जहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है ऑलरेडी। आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री गाइडेंस दिया जाएगा रिलेटेड टू योर स्टडी। एंड हर घर शिक्षा को आगे तक पहुंचाकर इसे कामयाब बनाने के लिए और देश को शिक्षित बनाने के लिए, देश के हर नौजवान, हर गरीब अमीर तक ये शिक्षा पहुंचाने के लिए मैंने ये मिशन तैयार किया है। और इस मिशन में मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, एंड दैट इज द रीजन कि मैं आज भी ऑनलाइन हूँ। अपने हॉलीडे पे भी आज मैं ऑनलाइन हूँ, ताकि मुझे लगा कि हो सकता है क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो क्लास में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज जो मेरे स्टूडेंट नहीं है बट स्टिल मेरे फॉलोअर्स हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, उनके भी कुछ डाउट हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे फॉलो किया है। तो आपके डाउट्स और आपकी क्वेरीज को ही सॉल्व करने के लिए मैं लाइव आता हूँ हर संडे इवनिंग में। तो आप जाके हमारा यूट्यूब चैनल जो है हर घर शिक्षा बाय एला, वो फॉलो कीजिए। उसके साथ ही एक और चैनल है शॉर्ट्स बाय एला। शॉर्ट्स बाय एला पे आपको इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरीज जो आईएल्स और गवर्नमेंट एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, वो दी जाती है। एंड हर घर शिक्षा बाय एला जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, क्योंकि अभी लाइव अलाउ नहीं है बिकॉज सब्सक्राइबर कम है। तो फ्री एजुकेशन का एक लिस्ट बना होगा, 30 डेज फ्री एजुकेशन, फ्री स्पोकन क्लास। उसमें आप डे 1, 2, डे 3, 4, 5 इस तरीके से बाकायदा सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड आई एम डैम श्योर गाइस कि आप वहां पे जाइए और आप फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। रेगुलरली मैं वहां पे चीजें अपडेट करता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं यहाँ पे भी वोकैबुलरीज एंड इडियम्स वगैरह में डालता हूँ। तो हर घर शिक्षा बाय एला और हर घर शिक्षा जो मेरा मिशन है, हर घर शिक्षा पहुंचाना, इसको कामयाब बनाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इंस्टाग्राम पे जितनी भी मेरी वीडियोस है या यूट्यूब पे वीडियोस है, प्लीज वहां से आप लिंक कॉपी कर या वीडियो डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर करें। बिकॉज हर घर शिक्षा, अगर मान लीजिए आपने अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगाया और आपके स्टेटस को 100 लोगों ने देखा, और उसमें से अगर 2 लोगों की भी अगर नीड पूरी हो जाती है और उन 2 लोगों की भी अगर मदद हो जाती है, तो आई एम डैम श्योर गाइस एंड आई रियली हैंड्स ऑफ टू यू कि आपने 200 लोगों की मदद कर दी, आपने 2 लाख लोगों की मदद कर दी। वो 2 लोग सिर्फ 2 लोग नहीं है, वो दिखने में 2 लोग है, लेकिन दरअसल रियलिटी में आपने मोर देन 200 लोग, 2 लाख लोगों की आपने मदद की है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल पे जितनी भी हमारी लेसन्स हैं उनको शेयर करें, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स हैं इनको शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। फ्री एजुकेशन आपको दिया जा रहा है, आप भी लें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों सब में शेयर करें इसे, और ज्यादा से ज्यादा इसे फैला दें, ताकि हर घर शिक्षा जो मेरा मिशन है, इसे हर घर तक पहुंचाया जाए और भारत को एक कामयाब देश बनाया जाए। और भारत की कामयाबी में एक छोटा सा योगदान आप दे सकते हैं इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर करके, बिकॉज वहां पे मैं डेली बेसिस पे क्लासेस दे रहा हूँ और आपकी वजह से किसी का स्पोकन क्लास कवर हो जाएगा। और कोई जो पैसा नहीं दे पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या जो लड़कियां घर से बाहर नहीं जा पा रही है किसी कारण से, वो घर बैठे बैठे एजुकेशन ले पाएगी। इनफैक्ट प्रैक्टिस के लिए, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के लिए भी कुछ समय के बाद मैं लाइव सेशन एक ऐसा लाऊंगा जहाँ पे मैं 1-on-1 इंटरेक्शन करूंगा बच्चों के साथ और उनकी कम्युनिकेशन को बूस्ट करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें एंड हर घर शिक्षा फैलाकर भारत को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। तो आज की वीडियो में, आज की लाइव सेशन में बस इतना ही। आपसे मिलूंगा अगले संडे को। डेफिनेटली अगले संडे को मैं एक नया पॉइंट, नई आइडियाज, नई एनर्जीज और नए थॉट्स के साथ आपके सामने आऊंगा और कुछ वक्त आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी करूंगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशंस बूस्ट हो सके और आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। तो हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग ऑनलाइन। यो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। That's all for the day. Take care of yourself, keep learning and keep growing yourself. Thank you.